Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the important topics from 2nd of August. So first, identifying the creamy layer, the model of OBC reservation. तो अभी recently Supreme Court judgment आया. So हम यहाँ पे सब categorization की बात कर रहे हैं, even within the creamy layer. So sub classification, scheduled caste and scheduled tribes for the purpose of granting these separate quotas. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओबीसी रिजर्वेशन, सो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी 1990 में, बट द रिपोर्ट वाज मेड पब्लिक इन 1980. तो वीपीसी गवर्नमेंट they implemented the report and इसमें 27% reservation was granted to the OBC caste for the civil post and the services. So later on, this was challenged in the Indira Sane case of 1992 also, but again this was upheld and उसमें फिर creamy layer को introduce किया गया था कि जो creamy layer है for like what are the basis for identifying the creamy layer. So one of the basis is कि आपकी annual income it shouldn't be 8 lakhs or more than 8 lakhs. तो अगर ज्यादा या 8 lakhs है तो आप creamy layer हो, मतलब यू आर इकोनॉमिकली साउंड. सो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी क्रीमी लेयर को. तो दिस अगेन ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन एंड दिस forms also the part of the fundamental right under Article 16. So this is the thing. So यहाँ पे अभी यही है कि सब कैटेगराइजेशन सब क्लासिफिकेशन फर्दर उसको किया जाएगा. एंड so Department of Personnel and Training, so they have listed the 6 categories of people and the children जिनको consider किया जाएगा. तो ये और further classification. And then property owners with the agricultural holdings and vacant land, this would also be one of the bases. Then अगर आप like if you're in the profession of doctor or you're a lawyer and management consultant engineer, so then also you'll be falling under this category. So group A, group B officers. तो ओरिजिनल जो इनकम थ्रेशोल्ड था वो ₹1 लाख पर एनम था, बट नाउ इट वाज अपडेटेड इन 2017 टू ₹8 लाख पर एनम. एंड अभी फिर आई थिंक बात हो रही है. सो 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दे हैव रिकमेंडेड कि 8 लाख से 15 लाख रेज हो जाना चाहिए. तो अभी ये मतलब फॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो करंटली हम 8 लाख ही फॉलो करते हैं. तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, फाइनल डिसीजन, it would be of the states on whether to create a creamy layer exception, if so and how to do it. So final implementation जो है that would be under the state's ambit. So this is one of the recent updates we can say. So that again जो group of society, group of section है जिनको actually they need the reservation thing, तो उन तक वो benefit पहुंचना चाहिए. तो उसके लिए ये change यहाँ पे किया गया है by the Supreme Court. Then bilateral relations, India and Vietnam. So we are aiming कि हमारा जो bilateral trade, current bilateral trade है, उसको हम double कर दे from the current level. And we are seeing कि India के लिए one of the opportunities when we are talking about the expansion of या फिर growth of our exports. So we are looking at the Southeast Asian economies. So we can say that there is still more potential, because when we are talking about even the GDP growth of these economies, that is also growing. तो वहां से हम बोल सकते हैं कि demand भी increase हो सकती है, and hence we can export more things there. So this is one aspect. Remarkable strides under the CPP leadership. So when we are talking about the political aspect of Vietnam, so currently we are seeing Southeast Asia's Marxist-Leninist one-party state. इस पे question भी आ चुका है prelims में. One-party state, the Socialist Republic of Vietnam. So they are currently in power, and they came into being 3rd Feb 1930. And then it is also related to victory of Vietnam in 1945's August Revolution. So this was spearheaded by the communist revolutionary Ho Chi Minh. So again, जब हम history of Vietnam की बात करते हैं तो
Ho Chi Minh played an important role. So again, Marxist and Leninist one party state है, तो leftist ideas हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे. Welfare of farmers, welfare of workers, उनकी rights को uphold करना. And then again, when we're talking about colonizers, so French colonists were they were their like plans of invasion and the France aspiration to reclaim the colonial power in Vietnam after World War II. And again, it is also somewhere related to the US invasion also, the Vietnam War. And recently, when we were talking about the strategic foreign policies, through which again Vietnam has established itself, created a place for itself in Southeast Asia. So we are seeing its important role in ASEAN, ASEM, and APEC, and even World Trade Organization. So recently, when we talk about the China Plus One strategy also, so then also we are seeing ki, one of the major attraction for the countries when we're talking about diversifying their establishments. So Vietnam has been one of the top choices by them. So जब हम competition की बात करते हैं तो in that sense India faces competition from Vietnam in this case, because even India wants कि China plus one strategy के through हमारा भी ज़्यादा benefit हो, we get more FDI. And free trade agreements की हम बात करते हैं तो Vietnam has signed multiple free trade agreements with other key countries also. So हम जब bilateral relationship की बात करते हैं, so here comprehensive strategic partnership, even like this is the current status. 2016 mein it was raised to this level. Comprehensive strategic partnership. So even when it comes to the challenges emerging from China in the Pacific Ocean, in the Indo-Pacific region, so there also from the perspective of trade security, that would also be determined how we are having trade relations with Vietnam also. Because Vietnam is one of the largest players. And when we come to the numbers, so here we are seeing that bilateral trade volumes, we are they have been increasing annually. Earlier 2000 mein, they were at $200 million, and 2023 mein, it has reached $14 billion. So this showcases our strengthening relationship with Vietnam. And Vietnam was 21st largest trading partner of India. So this is there. So Vietnam is also, what are the benefits? Yeah, what are the incentives for Vietnam to increase its trade relations with India? So in that case, we are seeing that they are entering our consumer market, because that is one of the, we can say, the main thing which attracts the countries or even the FDI or FPI investments in India, because of which we say कि Indian economy is also majorly growing, because we are consumption-led economy. So even in case of like the IT sector, textiles, pharmaceuticals, agricultural sector, so there we are seeing that our relationship is strengthening with Vietnam. And recently, the Prime Minister of Vietnam also visited India. So expansion in digital economy, telecommunications, information technology, infrastructure sector, where even India wishes to do more of investment. So in that case, we are having, like, we are on the same page. So it will be important for both regional and global stability and prosperity. So this we just saw in the very first article, subclassification of SCs and ST for the OBC reservations, which was 27%. So again, let's look at if there is something new over here. So spirit that pervades the majority opinion is that any classification within the social justice policy. So this is the keyword, social justice policy. The benefits should reach that particular section of society who really need the reservation. So it must be reasonable and rational. So this affirms long-standing requirement of evidence-based policies of the social justice. So यहाँ पे again EWS कोटा के केस में बोला जा रहा है कि this was something, this is one of the opinions कि जो ये बात हो रही है कि social justice policies, it should be rational, it should be evidence based. तो EWS कोटा जो 103rd Constitutional Amendment Act के through लेके आया है, this was not seen there. So this is one of the opinions. And
So data-driven policy fortifies the imperative for a nationwide caste census की भी बात हो रही है, which has not been held after 2011. So for mainstreaming the backward SC and ST community, तो उनके लिए एक ये स्टेप है. और एक हमने चेंज की बात की कि और क्या होना चाहिए, तो क्रीमी लेयर में ₹8 लाख जो एनुअल इनकम वन ऑफ द क्राइटेरिया है, उसको ₹15 लाख चेंज कर देना चाहिए एज पर दी कमिटीज रिकमेंडेशन. So this would be important for creation of an inclusive society. We've also talked about Indira Sahni Amendment 1992. So इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. जब हम अगेन बात करते हैं नाउ सर्टिफिकेट्स की कि उसमें भी जो भी रिसेंट हमने यूपीएससी से रिलेटेड केस देखा, पूजा खेड़कर केस. सो हाउ विल बी वेरीफाइंग कि जो सर्टिफिकेट्स भी हैं दे आर ऑथेंटिक, दे आर ओरिजिनल. सो वो भी एक अब एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. Then controlling gestational diabetes critical to mother and baby's future. So here we see that during pregnancy, the risk of type 2 diabetes in women that increases. So that would be having definitely consequences for the fetus also. And of late, we have been seeing also that the risk of non-communicable diseases has been increasing. So NCDs. So for that case, taking care is important. So fetal programming is one thing that we can focus upon. And like periodically focusing upon monitoring ki what are the level of sugar levels of the pregnant mother, so that again it can be brought down to the desirable level. So National Institutes of Health, US and WHO analysis, they states that a 2 hour post this like monitoring the blood sugar, it should be 110 mg per dl at the 10th week. So 2013 WHO guidelines does not include this. So these are very like specific things. So overall, we can say what kind of lifestyle you are following, what are your food habits, whether you are cutting down on white sugar or not, and going for the healthy options of sugar like jaggery or the brown sugar that we have, or you are having adequate amount of consumption of the fruits which have natural sugars in that, all of that. So that would also be somewhere determining how you are able to better control your the diabetes and suppress the risk from type 2 diabetes. And then regular exercising, that is like these are the key things which are very important. अदरवाइज यहाँ पे लाइक मेडिकल पर्पस की बात हो रही है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन फोकस होना चाहिए. ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन बट ऑल्सो social mandate. So health and the prosperity, the welfare of the society, all these things are interrelated. So how we are cutting down even on the usage of the packaged food, जिसको हम dead food बोलते हैं. तो एक like living food and dead food is one thing जो बात की जाती है even in the Sattvic movement. तो all the packaged food, pre-packaged and processed food, उन सबको dead food बोला जाता है. तो वो जितना आप कम खाओगे वो आपके लिए healthy होगा. तो यहाँ पे भी again proper diet is the key to managing the childhood obesity and diabetes. So इतना ज्यादा एक तरीके से ये भी एडिक्शन है. जैसे हम सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करते हैं, मोबाइल फोन एडिक्शन की बात करते हैं, तो इफ यू स्टार्ट हैविंग जंक फूड वंस एंड अगर आप उसके साथ रेगुलर हो जाते हो तो वो एक एडिक्शन हो जाता है. तो एक वो चीज भी है लाइक मेंटली आपका ब्रेन आपको बोलने लग जाता है कि यू नीड टू हैव दैट, तभी यू फील समवेयर लाइक सेटिस्फाइड फॉर अगेन फ्यू आवर्स. सो ये यहाँ पे एक इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाए कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो इन दैट केस रोल ऑफ पेरेंट्स इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन सेकेंडली स्कूल में जो एजुकेशन है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर ईयर. स्टार्टिंग से आपको बताना चाहिए कि इफ यू लाइक रिलाई सो मच और इफ यू लीड सो मच ऑफ जंक फूड, तो ये जो प्रॉब्लम्स है कितनी रिस्की है आपकी हेल्थ के लिए. एंड फिर उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कंट्रोल करना और मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर the mental health also and the physical fitness also. labor productivity के ऊपर भी impact होता है. and then the burden on the healthcare services, that also increases, the pressure increases there.
Now, going by the numbers, यहाँ लिखा है age group of 0 to 5 years in India, they are underweight, low weight for age, and then 36% stunted. Stunted means low height for age. 6% are wasted, low weight for height. So all these indicates malnutrition in India. So these are the official figures by Women and Child Development Minister. So malnutrition, it has been defined by WHO. So this is not just only related to the medical or the healthcare. So in that case, it is related to your social health also, your physical health also. Refers to deficiency or excesses in nutrient intake, imbalance of essential nutrients, impaired nutrient utilization. So double burden of malnutrition. So undernutrition भी है and overweight. So like scarcity or excess of something दोनों ही इसमें fall करता है according to the WHO. Then we have dietary guidelines also from the ICMR, which is the National Institute of Nutrition also, which is there in Hyderabad. So this we are seeing a large proportion of children have suffered the impaired nutritional status. So they are battling overweight, they're battling obesity, pre-diabetic symptoms are visible. So dual burden of malnutrition. So जब हम demography, quality of demographic dividend की बात करते हैं, so in this case now we are seeing कि एक तो हम education sector की बात करते हैं, quality of education की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो gap है between the skills and education या the skills which are in demand by the industry, उस gap को कम करना है. And second अब जो aspect है health का, non communicable diseases का, वो भी significant हो गया हमारे लिए. कुछ तो अच्छा डायबिटीज और ओबेसिटी को लाइक कंबाइन करके डायबिसिटी पैंडेमिक, कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल ऑफ अडल्ट्स using biologics to tantamount to closing the doors for this. So India struggled with the malnutrition for decades. Unhealthy diets की वजह से 56% of the total disease burden है. सो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है. एंड देन उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हैं, मिलेट कल्टीवेशन की बात कर सकते हैं. तो इवन लाइक एवरीथिंग इज वेरी इंटर रिलेटेड यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. इफ वी आर कल्टिवेटिंग मोर ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स ऑल्सो, जो कि न्यूट्रिशनली सिक्योर भी है हमारे लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो सब इंटर रिलेटेड है. सो इवन यहाँ पे वॉलेटिलिटी विद द फूड प्राइसेस की भी एक बात की गई है. द लार्ज डेफिसिट्स इन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पीपल. सो इंडिया एंड यूके रिलेशंस की हम बात करें तो यहाँ पे भी वी आर लाइक वी हैव नॉट येट कंक्लूडेड द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विच इज ऑनगोइंग. एंड आफ्टर द इलेक्शंस अगेन जो भी यूके में हुए हैं the central elections, so there we are seeing कि the leftist party has come to the power. And 2030 roadmap की एक बात हो रही है between India and UK. So our bilateral trade stood at 39 billion pound in 2023. So one is this, and एक तो ट्रेड की बात होती है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन की बात होती है, देन स्टूडेंट्स या इंडियन डायस्पोरा या जो इमिग्रेंट्स हैं, हाउ दैट रूट इज स्मूदर, या उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है और स्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है. सो दिस इज द लेबर पार्टी कम इन टू पावर, लैंडस्लाइड विक्ट्री इन यूके. So key areas of alignment, it would be including again science and innovation points, natural partners in defense and security. And so we are focusing upon indigenization, building reliable defense technology, supply chains, access to critical technology, increasing the exports, critical minerals की बात करते हैं, domestic manufacturing. So UK में जो mature and sophisticated defense industry है, that can support India's this indigenization mission या Make in India program जो है, being self-reliant. So momentum is rising. Defense Minister visit showcases the same thing. Then visas की again वही बात हो रही है. Indian students living bridge, champion this living bridge. तो cultural relations, people to people ties, even हम tourism की बात करते हैं, और climate change में भी हम बात कर सकते हैं कि how tourism is getting affected because of that. So उस area में what else can be done.
So even British companies are committed to manufacturing in India. And they are like on board when we are talking about जो policy changes India में किए जा रहे हैं to integrate India into the supply chains globally. Taxation policies में जो अभी हमारे changes हुए and intellectual property. This is another area. So when we're talking about how GST has been helping us, तो firstly हमें यहाँ chronology पता होना चाहिए जब हम taxation revenues की बात करते हैं to the government. So the highest one that the government earns from is from the income tax. Then we have GST at the second position. Earlier it was corporate tax, but now third पे we have the corporate tax. So have we seen rupees 1.8 trillion GST collections up 10% year-on-year basis पे. So this is the average that we are even seeing. Earlier it used to be somewhere around rupees 1 lakh crore monthly collection में, but now that has been increasing. And now this is one of the examples of disinvestment by the government. So IDBI Bank की बात हो रही है यहाँ पे. So in this case ये 2022 से बात हो रही है, but now finally decisions are being taken up. So RBI जो important players है, like currently अभी अगर हम बात करते हैं तो Indian government का stake है 45.5% and LIC का share है 49.24%. So total of 60% would be diluted. And इस case में like कौन से प्लेयर्स हैं जो एंटर कर सकते हैं? फेयरफैक्स इज देयर, एमिरेट्स, एनबीडी एंड कोटक. सो दीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. सो अगेन जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट अगेन डाइल्यूट्स मोर देन 50% ऑफ इट्स शेयर, बट कुछ अमाउंट ऑफ शेयर वो स्टिल दे होल्ड दैट. एंड disinvestment में एक हम बोलते हैं whether this is really sustainable way of reducing the fiscal deficit by the government or whether it is really a sustainable way to increase the revenues of the government or not. So एक ही question उठता है. And then secondly हम बोलते हैं कि government has no business to be in business, तो इसलिए government को अपना stake या business में कम से कम रहना चाहिए and it should stick to again the social welfare policies या fiscal policy पे ज़्यादा focus होना चाहिए. So this is the second aspect. So this can be cited as example also recent disinvestment by the government. मानसी दी, इसके अंदर जो हम शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर रहे हैं उसकी नीड क्यों है हमको, मतलब क्यों किया जैसे जा गवर्नमेंट नीड इसलिए है ना, गवर्नमेंट को अगर अपना स्टेक डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब गवर्नमेंट का अगर 45% है और LIC भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उनका शेयर 49% है, तो 60% टोटल शेयर वो अपना बेचना चाहते हैं, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. या मतलब 60% जो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं इसमें गवर्नमेंट ने IDBI बैंक में, वो उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं. तो सेल करेंगे तो कोई खरीदने के लिए भी होना चाहिए ना. तो इसलिए ये प्लेयर्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द नीड एंड देयर एक्सपीरियंस या कौन से फील्ड में ज्यादा वर्क करे. जैसे फेयरफैक्स है वो फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर. कोटक महिंद्रा बैंक इंडियन एंटिटी है. देन एमिरेट्स एनबीडीज, इट इज आल्सो रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज UAE का. तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज के थ्रू IDBI बैंक को क्या फायदा हो सकता है. सो दीज वुड बी सम ऑफ द बेसिस अगेन एंड इट इज शॉर्टलिस्टेड बाय RBI. तो दीज आर द शॉर्टलिस्टेड बिडर्स. तो बिडिंग होगी उसके बाद एंड अकॉर्डिंग टू द बिडिंग जिसकी जो हाईएस्ट बिडर रहेगा that person or that entity would be enjoying that particular share in the IDBI bank accordingly. ठीक है, I hope I'm clear. यस दी, थैंक यू. Okay, GST collections की बात हो रही है तो यहाँ पे वन we have the graph 10% increase हो एक तो year on year basis पे. एंड क्रोनोलॉजी शेयर हम बात कर चुके हैं. तो व्हाट आर द मोर पेंडिंग रिफॉर्म्स जो हम बात करते हैं GST में अगेन which would be further helping in enhancing the efficiency of the GST collections. One would be the rationalization of the tax rate, the GST rates which are having जो अभी 5 slabs हैं GST की, उसको एक तो बात की जा रही है क्या वो सिंगल स्लैब हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, whether that is better suited for the Indian system, for the Indian economy or not, because that would also depend upon कि जो डाइवर्सिटी ऑफ सोशल ग्रुप्स है, द लेवल ऑफ पॉवर्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वी नीड टू इंश्योर कि डिफरेंट टैक्स रेट स्लैब्स जो है कितनी होनी चाहिए और टैक्स रेट कितना होना चाहिए. एंड GST एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है रिसेंटली दैट हैज कम इनटू दी फंक्शनिंग, तो वो भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी. एंड
एक सबसे बड़ा करंट इशू जो है जिसका सोल्यूशन अभी हमें नहीं मिला है, दैट इज कि जो फेक जीएसटी जनरेट किए जाते हैं उनको हम कैसे पहले आइडेंटिफाई करें, बिकॉज वो आइडेंटिफाई हो पाता है बट वंस वो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है फेक जीएसटी का, और जो अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू जो फायदा उठाने की बात की जाती है उसको मिसयूज किया जाता है थ्रू जनरेटिंग द फेक जीएसटी। तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन हमारे लिए नहीं है इफ वी गेट दैट। सो अगेन जो एफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा जो इफेक्टिवनेस है जीएसटी की इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे कलेक्शंस के बेसिस पे बात हो रही है। Now, World Bank study says कि India needs 75 years to reach quarter of US per capita GDP। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए यूएस की पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, तो इट इज 76,000 पर कैपिटा जो इनकम है वो यूएस की, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया को अगर we have to become a developed country by 2047, so our per capita income needs to reach $18,000 per person, जो कि अभी currently it is close to $2,400 per person। so one is this aspect। and ये एक बात हो रही है कि हम यूएस से कंपैरिजन यहाँ कर रहे हैं, तो उसका क्वार्टर मतलब 1/4 रीच करने के लिए भी हमें 75 ईयर्स लग जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक की एक और क्लासिफिकेशन है कि हाई इनकम कंट्रीज को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, तो उसमें एक बेसिस यही है, पर कैपिटा इनकम शुड बी ईदर $14,000 पर कैपिटा और शुड बी हायर देन दैट। तो हाई इनकम कंट्री में ये एक कैटेगराइजेशन है। एंड एक जो इंडिया के लिए रिस्क है कि हम 2047 तक की टाइम लाइन या टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, तो बीच में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे। सो अगर हम उससे सक्सेसफुली बाहर निकल के आ सकते हैं, या उसके लिए जो हम करंट टाइम में क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या पॉलिसी चेंजेस ले रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रियल इनकम का इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तीन फैक्टर्स जो हैं मेजरली दे विल बी ड्राइविंग अस आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। तो मिडिल इनकम ट्रैप ये है ना, इनकम मिडिल कैटेगरी इनकम में आप फंस जाते हो, वहां से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। सो उसमें अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, एंड अलाउइंग रिसेंटली वी अंडर द नेप ओनली हमने देखा कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं इंडिया में उसको भी ओपन अप करने के लिए परमिशन दी गई है अंडर द नेप इटसेल्फ। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो ड्राइव करेंगे, और हम कितना फोकस कर रहे हैं जो क्रिटिकली इमर्जिंग एरियाज हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, फिनटेक इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जो कि वन ऑफ दी सेक्टर्स है इन टॉप 10 सेक्टर्स जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी आने वाले टाइम में। सो एंड ये भी बोल सकते हैं मानसी दी कि जैसे जो दूसरी कंट्री है, जैसे साउथ कोरिया की भी बात करते हैं, तो उसको भी बोलते हैं कि 40 इयर्स के आसपास लगे थे टू रीच दी क्वार्टर ऑफ द यूएस पर कैपिटा जीडीपी। और जैसे चाइना का भी मॉडल है, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं, उनको भी एक लेसन की तरह, केस स्टडी की तरह देख सकते हैं। हाँ राइट, यस, मतलब इंडिया और साउथ कोरिया का कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तो साइज ऑफ इकोनॉमी होता है एंड द चेंज्ड कंडीशंस, मतलब वहाँ पे बिल्कुल अलग कंडीशन है, इंडिया में बिल्कुल अलग कंडीशन है, बट अगेन स्पेसिफिक लर्निंग्स कुछ हो सकती है हमारे लिए। इवन हम चाइना से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। So this is where we escape the middle income trap, and the absence of creative destruction results in a stark contrast. Like क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, या फिर पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट फर्म्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। बट इंडिया के केस में यहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब एक एस्पेक्ट ये भी है, क्योंकि वी आर अ लेबर सरप्लस कंट्री एंड वी हैव चीप स्किल्ड लेबर, ये एक हमारा एडवांटेज है हमारे पास, एक एक यूनिक एडवांटेज है। तो इसको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, मतलब एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि इसे हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें ये बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को ही हम आगे कैसे प्रमोट करें, उसको हमें इतना ज्यादा लाइक टेक्नोलॉजिकली नहीं कर देना है कि ऐसा सिनेरियो खड़ा हो जाए हमारे सामने कि जो
लाइक जॉब क्रिएशन है, टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हमें यूज करनी है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, वर्किंग टाइम को कम करे, रियल इनकम को इंक्रीज करे। तो दिस इज द एस्पेक्ट। So since 1990, only 34 middle income economies have managed to shift to high income status. तो ये एक हमारे लिए केस स्टडी हो सकती है कि how they have managed to shift to this high income status. And a third of them were either beneficiaries of integration with the European Union or of previously undiscovered oil. तो वो सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज की बात हो रही है। तो ये तो एक उनके लिए बोल सकते हैं नेचुरल एडवांटेज इमर्ज हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जब हम ओपेक की बात करते हैं तो वो एक हम बोल सकते हैं जो सिंगल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा है उन इकोनॉमीज के लिए जिनका उन्होंने फायदा उठाया है, एंड दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ दैट मिडिल इनकम ट्रैप। एंड यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इस केस में वी आर सीइंग कि इंडिया अपने लेवल पे जो अभी हमारी करंट पोजीशन है विद द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो हम बायलेटरल ट्रेड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मार्केट एंड नॉट बीइंग जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अगेन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, एंड बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक एडवांटेज है इंडिया के पास। सो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सो हम यहाँ पे एमएसपी प्राइसेस की बात करते हैं। लाइक गवर्नमेंट करंटली मॉनिटर्स द प्राइसेस ऑफ 22 कमोडिटीज, बट नाउ वी आर सीइंग कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, एंड मोर और लेस इट इज on the upper side maximum time पे, तो we are not able to control or bring down the food inflation. So government has decided to monitor the prices of 16 more commodities, and इसमें vegetables like लिखा हुआ है cumin seeds, black pepper, like fruits and vegetable, तो the horticulture sector को और ज्यादा monitor किया जाएगा। And इसके अलावा बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी, सो इस पे फोकस किया जाएगा। तो इसके थ्रू यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस मॉनिटर नहीं, यहाँ पे हम सप्लाई को भी मैनेज कर पाएंगे, हमें पता लग पाएगा कि कितना अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें और क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सके, क्रॉपिंग पैटर्न को और ज्यादा मॉडिफाई कर सके, क्या गवर्नमेंट अपने पार्ट पे चेंजेस कर सकती है। सो जो 38 कमोडिटीज हैं दे विल हैविंग 30% वेटेज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अदरवाइज जो फूड कमोडिटीज हैं उनका वेटेज सीपीआई में 40% है, बट यहाँ पे सिर्फ 38 कमोडिटीज जो गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। एंड इस पे अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, जो करंट 22 कमोडिटीज हैं वो ये सारी है, तो हमें ये लिस्ट पता होना चाहिए। एंड ये 16 कमोडिटीज ऐड करने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो होर्डिंग के केसेस होते हैं, प्रॉफिटेरिंग के केसेस होते हैं, उनको भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक कितना है उसको हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, देन प्राइसेस को भी ट्रैक कर रहे हैं। एंड जो एकदम से शॉर्टेज हो जाती है मार्केट के अंदर, वो प्रिवेंट हो पाएगी। जैसे उसके अभी साथ साथ प्राइस फ्लक्चुएशन तो मतलब हम कम करेंगे ही इसके साथ, बट एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट को भी स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ में जो डिस्ट्रेस होता है फार्मर्स को उसको भी कम करने की साथ साथ बात कर रहे हैं। राइट। ये इसमें अभी हम करंटली देख ही रहे हैं कि टमाटो प्राइसेस दे हैव स्पाइक्ड अप सो मच कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज प्राइसेस पे सेल कर रही है थ्रू देयर ओन यूनिट्स। सो एक ये भी है कि दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म, बट ये शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है कि कैसे हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। Then high valuations, but still we are seeing these are no deterrents for the market players. तो इंडिया में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं currently, specifically after COVID-19, एक तरीके से बहुत बड़ा structural change आया है in terms of the market players who are participating in the capital market in case of India. So एक question ये उठता है जो हमारे पहले के like cause and effect वेरिएबल्स जो हम लेके चलते थे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि अब एक ऐसा लेवल आ चुका है कि बहुत बड़ा करेक्शन अभी पेंडिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में, या फिर बबल फॉर्मेशन हो रहा है तो रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये पहले के डायनामिक्स हैं, क्या ये डायनामिक्स अब भी काम करेंगे व्हेन वी आर सीइंग कि इंडिया में एक तो ये डीआईआईज लिखा ही हुआ है यहाँ पे
कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं दे हैव आउटपेस्ड द फॉरेन पोर्टफोलियो फंड फ्लोज बाय 5 times इन लास्ट 10 months। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड वी हैव सीन yesterday also कि मार्केट has touched its all time high। तो एक ये रिस्क कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो क्या ये रिस्क अभी भी रिस्क है हमारे लिए, एक ये पॉइंट है। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं दे आर फ्यूलिंग द रैली, जिसकी वजह से मार्केट इज टचिंग ऑल टाइम हाई एंड ऑलमोस्ट लाइक पास्ट 1 वीक से भी इट इज बीन राइजिंग। तो क्या ये आगे सस्टेन होगी या अगेन दिस इज जस्ट मेयरली अ बबल फॉर्मेशन इन द मार्केट। सो ये एक एस्पेक्ट है। इवन जब म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे देखने को मिल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वन इज म्यूचुअल फंड में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। SIP numbers have expanded, they have multiplied by again they are averaging to ₹20,000 crores a month, and retail investors are the major participators there. So a very large number of stocks, they now trade at prices to the multiples of 50 times and 60 times estimated forward earnings। तो unreal expectations market में form हो रही है। So बात इसकी यही है कि क्या ये मोमेंटम हम सस्टेन कर पाएंगे merely on the basis of the participation by the domestic players or not। स्टिकी रेवेन्यू डेफिसिट, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू डेफिसिट, तो जैसे बजट में हम बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपली कि रेवेन्यू अर्निंग्स कितनी हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा इन केस ऑफ द डेफिसिट। So in this case, we are seeing कि the figures are again, it is not subsiding much. So tax reforms without economic overhaul, they will not be paying us the desirable results. So quantum jump in the fiscal resources, that is definitely strong, but simultaneously जैसे अभी हमने देखा recent budget में tax reforms बहुत ज़्यादा किए गए हैं, एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड भी हो, चाहे स्टार्टअप से रिलेटेड हो या फिर न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज जो अगेन इंडिया में FDI लेके आने की बात कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमने रिड्यूस किया है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में चेंजेस हुए हैं कैपिटल सेक्टर में एंड इवन रियल एस्टेट सेक्टर में, उसको भी कम किया हमने। सो बात यही है कि ये चेंजेस तो हमने इतने कर दिए हैं, इनके एक तो इफेक्ट जब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट की, तो जो बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस की बात यहाँ हम कर सकते हैं, हाउ वी आर इंश्योरिंग की कंज्यूमर इंटरेस्ट दैट रिमेन सेफ। तो CCI का रोल इंपॉर्टेंट है, सेबी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेरा इज इम्पॉर्टेंट। तो एक सेकेंड एस्पेक्ट की हमने यहाँ बात करी थी कि डायरेक्टली टारगेटिंग द फिस्कल डेफिसिट या मूविंग टूवर्ड्स द इवन द डेट टू GDP रेशियो, वो एक ज्यादा ब्रॉडर मेजर है, ज्यादा रियलिस्टिक एंड ज्यादा रैशनल है। सो टैक्स पोटेंशियल की बात हो रही है कि इंडिया उस टैक्स पोटेंशियल तक पहुंच जाए थ्रू दीज करंट रिफॉर्म्स। तो करंट टैक्स टू GDP रेशियो हमारा 18% है। टैक्स मतलब टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कितना जनरेट कर पा रही है आउट ऑफ अ परसेंटेज ऑफ GDP, जो हमारा करंट ग्रोथ रेट है, तो वो 18% टैक्स रेवेन्यूज हो रहा है। तो हमारा पोटेंशियल है 25% तक हमें टैक्स टू GDP रेशियो लेके जाना है, तो इसके थ्रू